Hello students, how are you all? So today in our session we are going to starting with natural resources. So let's find out exactly what are the natural resources and what we are going to study in this chapter. So first let's see the learning concepts we are going to study in this chapter that are the introduction of this chapter. Then we are going to see the breath of life air, we are going to study about air, the role of the atmosphere in climate control, then the movement of air, wind, the rain, the air pollution, and then we are going to see water, which is a wonder liquid, as we all know. Water pollution, then we are going to study about the mineral riches in the soil, the biochemical cycles, the water cycles, the nitrogen cycle, the carbon cycle, and the oxygen cycle. And then we are going to discuss the greenhouse effect and the ozone layer. So let's start. So first of all, as we all know that our Earth is the only planet in which the life exists. Life is possible just because we need water to drink, right? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट करती है, अब तक हमको ये पता है. एंड ये जो यहाँ पे अपन जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ के, उनको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जीने के लिए. फॉर एग्जाम्पल वाटर, the sunlight because to escape from cold weather, and different things also because sunlight is very essential in different processes like we know, for example the photosynthesis. If we talk about soil, soil is also a very important resource that we need to grow food. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirement of all the life forms on the earth. That means अपनी earth में जितनी भी life forms है, जितने भी organisms हैं, उन सबको resources चाहिए होते हैं. हमको sun की rays चाहिए होती है, sunlight चाहिए होती है. We need different kind of resources. Let's find out what are these natural resources. As we just studied the sun, the soil, and the water, and the atmosphere, the air, let's find out more in detail about these, as these are the basic requirement of life. What we can see here, the water, the atmosphere, we can see the air, and the soil. These are the basic requirements of life. That's why we call these the resources. Let's find out more about this. If we talk about the lithosphere, this is the outermost crust of the earth. This is known as lithosphere. As you can see here, if we are talking about this. So जो outermost layer होती है अर्थ की, उसे हम कहते हैं lithosphere. उसके बाद कौन सी layer की we are going to talk about? Water covers 75% of the earth. जो water होता है वो 75% जो होता है अर्थ का, उसे cover करता है. And it is also found underground. और इसको अंडरग्राउंड भी ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा सी होता है, जो हमारा ओशियन होता है, हमें कहाँ पे मिलता है वाटर? नीचे की तरफ, लैंड से नीचे की तरफ मिलता है, राइट. एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. दीज कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर. जब हम बात करेंगे ओशियंस की, सीज की, वाटर की, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट वी कॉल दीज हाइड्रोस्फीयर. And if we are talking about the outer crust of the earth के बाहर की जो crust होती है, if we talk about this, तो इसको हम क्या बोलेंगे? We call it lithosphere. Now there is one more layer which we all know, which is the atmosphere. Now let's understand that exactly what is atmosphere. So the air that covers the whole of the earth like a blanket, अपनी पूरी earth को एक blanket की तरह जो cover करती है, we call it atmosphere. And we have so many gases, so many things in that air, the atmosphere. So this is the atmosphere. This is the hydrosphere, where we talk about the oceans, seas. This is the geosphere, where we are talking about the lands. So these three consist and make the biosphere. If we are going to talk about biosphere, so biosphere include all these things, where the atmosphere, the hydrosphere, and the lithosphere interact is known as biosphere. बायोस्फीयर हम किसे कहेंगे? जहाँ पे हमारा एटमोसफियर भी है, जहाँ पे हमारा जियोस्फीयर भी है, और जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्फीयर भी. वी कॉल इट बायोस्फीयर.
दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, ये जो होता है ये हमारा लाइफ सपोर्टिंग है। कैसे? हमको एटमॉस्फेयर से कितनी चीज़ें मिल रही हैं, हमें हाइड्रोस्फीयर से पानी मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द जियोस्फीयर, जो अपना जियोस्फीयर लैंड है जहाँ अपन रहते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वी नो कि बायोस्फीयर में हमारे पास में 3 फैक्टर्स आएंगे, एटमॉस्फेयर भी आएगा, हाइड्रोस्फीयर भी आएगा एंड जियोस्फीयर भी आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर कि बायोस्फीयर में आती क्या क्या चीज़ें। सो इन बायोस्फीयर वी हैव द बायोटिक एंड द अबायोटिक फैक्टर्स। सो व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स? The plants, the animals and the microbes, these all include are known as the biotic factors. Now what are the abiotic factor in biosphere? In biosphere जो air होती है, water होती है and soil होती है, इन सबको अपन कहते हैं abiotic factors. लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट, जो लिविंग थिंग्स होती है वो सारी मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करती है बायोटिक कंपोनेंट्स को बायोस्फीयर के, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स में अपन ह्यूमन बींग्स भी आ गए, जो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे जिनको अपन एक नज़र से नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं अपन को, एंड जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ है अपन सब मिलके क्या बना रहे हैं? बायोटिक फैक्टर, दैट मीन्स द बायोस्फीयर। द ब्रीथ ऑफ लाइफ विच इज़ एयर, this is a very important topic, so let's discuss about it in more detail. So exactly if we talk about air, so air से हम लोग क्या लेते हैं? हम लेते हैं एयर से ऑक्सीजन, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो एयर से क्या ले रहे हैं? वो एयर से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो जो एयर होती है वो कंसिस्ट करती है बहुत सारी गैसेस, फॉर एग्जांपल द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें गैसेस के साथ साथ वाटर वेपर भी पाया जाता है एयर में। Now let's talk about the planets other than Earth. If we talk about Venus and Mars, so in planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, अभी तक अपन ने डिस्कवर नहीं किया है कि क्या Venus और Mars में भी लाइफ पाई जाती है। So the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. इनमें वीनस एंड मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होती है, और वहाँ पे लाइफ जो है वो भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है, हमको ये नॉलेज में है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट्स अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। वीनस एंड मार्स में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ में क्या पाई जाती है? अर्थ में देयर आर सो मैनी डिफरेंट गैसेज जो अपने बैलेंस एडिक्वेट अमाउंट में होती है, राइट। लाइक द ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वी हैव नाइट्रोजन टू, बट इफ वी टॉक अबाउट दीज प्लैनेट्स, यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। During respiration, living organisms use oxygen to break down glucose. अब अपन living organisms की if we talk about, तो air से हम क्या करते हैं? We take oxygen. Living organism respiration के टाइम पे जब अपन respiration, that means when we inhale, when we exhale, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, so we are talking about respiration here. Respiration के टाइम पे organisms use oxygen. हम organisms क्या करते हैं? We use oxygen to breathe, right? So उस टाइम पे जब हम oxygen use करेंगे, it will break down the glucose, वो glucose break down करेगा and get the energy, and क्या देगा अपन को? एनर्जी देगा for their activities, ताकि अपन different activities perform कर सके, right? This results in the release of carbon dioxide, and इसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम inhale करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, and जब हम exhale करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं बाहर। So burning of, if we talk about burning of fuels, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स मतलब अगर अपन जला देते हैं फ्यूल्स वगैरह को, तो क्या होता है? ऑल्सो यूज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उसको बर्न करने में ऑक्सीजन आएगी तो वो और तेज़ी से बर्न करेगा, राइट। इफ़ वी नीड टू बर्न इट, वी नीड ऑक्सीजन फॉर इट, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ वी बर्न द फ्यूल, तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो काम आ रही है एंड छूट क्या रहा है उसमें से? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसमें से। इफ़ वी टॉक अबाउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कर देंगे किसको? CO2 को, किसमें? ऑक्सीजन में। वी ऑल नो दैट कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो उन्होंने एयर से ली होती है, किसमें? ऑक्सीजन। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस हियर, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। तो CO2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज में प्लांट कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब हो रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज को। और यहाँ पे क्या होता है, दे रिलीज ऑक्सीजन जो कि हमारे यूज में आती है। द रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और इन सब से क्या हो रहा है, ग्लूकोज बनेगा प्लस कौन रिलीज कर रहा है, जस्ट आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन जो है वो तो रिलीज करेगा एंड ग्लूकोज जो है वो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। So these processes help to maintain the oxygen carbon dioxide balance in nature। यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे हमारे पास में एक तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वॉट वी डू, हम रेस्पिरेशन करते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का एंड जिससे हमें एनर्जी मिलती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए जिसमें हमें ऑक्सीजन काम में आती है, राइट। एंड हम यहाँ पे रिलीज क्या करते हैं, इन रिजल्ट वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं एयर से एंड क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इन द अदर हैंड कि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। सो देयर इज अ बैलेंस एज यू ऑल कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चल रहा है, एक बैलेंस मेंटेन है हमारे नेचर में। और अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी चीज़ की तो ज़्यादा हो जाएगी एयर में परसेंटेज एंड किसी की कम, जिससे लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। The percentage of carbon dioxide in an atmosphere is a mere fraction of a percent because carbon dioxide is fixed in two ways। अब जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कैसी है अपने एटमॉस्फेयर में, मेयर परसेंटेज में, तो कैसे उसको फिक्स्ड रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वी कैन से कि फिक्स्ड रहती है अपने एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा नहीं होती वो, उसकी परसेंटेज जो है वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड रहती है। अब किस तरीके से फिक्स्ड रहती है, तो उसके दो वेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन को। दैट मीन्स आधी तो किसने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स ने ले ली आधी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस को टेक प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुका है, काइंड ऑफ वी कैन से उसकी परसेंटेज थोड़ी बहुत बैलेंस हो चुकी है। सेकेंड चीज़, many marine animals use carbonates dissolved in sea water to make their shells। बहुत से ओशियन सीज में ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स वी कैन से, जो क्या करते हैं, कार्बोनेट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है वाटर में, उसको यूज़ करते हैं शेल्स बनाने के लिए। सो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है। दैट मीन्स कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उतनी काइंड ऑफ यूज़ भी हो रही है। सो इट इज़ बैलेंस्ड इन नेचर। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.